بڑھ گیا تو خون میں پھنسیوں کے ذریعے سے جسم پہ ثابت ہو گیا. تو پروردگار آپ کا علاج کر رہا ہے, اس کا کوئی علاج مت کیجئے. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ شہد خالص اگر آپ کو میسر آ جائے تو اس کو نہار منہ آدھا چمچہ چاٹ لیں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد. آپ دیکھیں گے کہ ہفتہ یا 10 دن میں وہ سارے پھنسی دانے ختم ہو جائیں گے, کیونکہ مواد فاسدہ کے جتنے بھی جراثیم خون میں موجود ہیں, شہد ہر ایک جراثیم کا خون چوس کے اس کو بیکار کر دیتا ہے. جی, ایک کالر بھی ہے, اس کے بعد وہ جن کا آنکھ کا پرابلم تھا وہ بھی آپ بتائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک. گوہر رحمان آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ نے میرا ای میل شامل نہیں کیا, وہ میں جو سوال میں نے سب شامل کر لیا, ای میل وغیرہ سب. پلیز ابھی جو نا وہ شامل کریں نا پلیز. میں نے کر لیا وہ شامل. گوہر رحمان آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. جی اچھا, ابھی میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھتیجا ہے, اس کا نام مجیب الرحمان ہے. اچھا. کہ وہ جو ہے نا وہ اسکول میں بھی بہت کمزور ہے, اور مدرسے جو ہے نا قرآن پاک میں وہ بہت کمزور ہے, تو اس کے لیے کوئی سی جو نا رپورٹ کا چاہیے. ٹھیک ہے. ذہین کیسے ہو, زیادہ اچھی ذہانت کیسے ہو, ہے نا؟ جی بالکل وہی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو. ہم آن ایئر بتاتے ہیں. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں. آنکھوں کا پرابلم جو تھا, نیم کے درخت پہ جو شہد ہوتا ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیم کے درخت پہ جو شہد ہوتا ہے اس کی 4 سلائیاں دائیں آنکھ میں اور 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں اگر آپ لگا لیں تو آپ کی گئی ہوئی بینائی یا کم ہوئی بینائی واپس آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, واقعی؟ جی ہاں. 4 دائیں میں اور 3 بائیں میں. اچھا, یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ بس یہ تو مولا جانتے ہیں کہ کیوں ہے. اچھا. کیونکہ یہ کراس کوئسچن تو نہیں کر سکتے کہ کیوں ہے. تو مولا سے اس وقت کچھ لوگوں نے کیا بھی, اور مولا نے اس کو بتایا بھی, جس نے پوچھا اس کو بتایا بھی, لیکن اس کے بارے میں نے پڑھا نہیں کہ کیوں. لیکن 4 سلائیاں دائیں میں اور 3 سلائیاں بائیں میں اگر آپ لگائیں تو بینائی واپس آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر اناب, ایک جڑی بوٹی ہے, اناب کو پیس کے سرمے کی طرح رکھ لیں, اس کو بھی آپ لگائیں اناب کو بھی آنکھوں میں, تو بینائی واپس آئے گی انشاءاللہ. یا شکورو پڑھیں, اس سے بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, دوسری چیز میں بتاتا ہوں, بارش کا پانی اگر آپ کو میسر آ جائے اس میں بھی شہد ملائیں, اس کو بھی آنکھ میں لگائیں. بارش کے پانی میں بے انتہا شفا ہے. جن شہروں میں ہمارے بارش ہو رہی ہے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. بارش کا پانی آنکھوں میں ڈالیں, بارش کا پانی پئیں, بے انتہا شفا ہے. اچھا. ہم تو کہتے ہیں کہ بارش کا پانی نیچے آتے آتے آلودہ ہو گیا, لیکن اس میں ایک چیز ہے واقعی, یہ جو دانے وغیرہ ہوتے ہیں اگر آپ بارش کے پانی میں نہا لیں صحیح ہو جاتے ہیں فوراً. دیکھیں اس میں بڑی کرامات ہیں. آپ دیکھیں اگر پودے کو لگتا ہے, زمین کو لگتا ہے, اس میں دیکھیں ہریالی کیسے پھوٹنے لگ جاتی ہے, پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں اتنی پاور ہے, اتنی شفا ہے کہ بدن کے لیے تو بے انتہا مہلک امراض اس سے ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح سے استعمال کریں. اب ہمیں ان کا بتائیے گا, وہ جنہوں نے کہا کہ بچے ذہین کیسے ہو سکتے ہیں. گوہر رحمان نے کہا تھا کہ دیکھیے اگر بچوں کو ذہین کرنا ہے تو مسور کی دال کھلائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسور کی دال سے عقل زیادہ ہوتی ہے. کسی بھی جانور کا گوشت کھلائیں, چاہے بکری کا ہو چاہے مرغی کا ہو, گردن سے قریب کا گوشت کھلائیں, عقل کو بڑھاتا ہے. اچھا. شہد کو کھلائیں بچوں کو, عقل کو بڑھاتا ہے. بچوں کو آپ قرآن کریم زیادہ سنائیں یا زیادہ پڑھوائیں, عقل کو بڑھاتا ہے. بچوں کو آپ زیادہ سے زیادہ آپ بہی کا مربع یا بہی دانہ, بہی کے بیج کھلانا شروع کریں, حکمت کے دروازے کھول دے گا. اچھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذہن ایسا ہو جائے کہ لوگ جادوگر کہیں آپ کو, اتنا تیز ہو جائے, تو 4.5 ماشا زعفران اور 4.5 ماشا شہد دونوں کو ملا کے کھائیں تو ذہن اتنا تیز ہو جائے گا کہ لوگ آپ کو جادوگر کہیں گے. اچھا. اتنا زیادہ قوی ہو جائے گا ذہن. اب یہ سارے نسخے جو آج بتائے جا رہے ہیں یہ آپ نے اپلائی کر کے دیکھنے ہیں, اس کے بعد بتانا ہے. خیر, ہمارے پاس کالر ہیں اس وقت. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی طارق بات کر رہا ہوں میواڑی سے. جی طارق صاحب فرمائیے. وعلیکم السلام. ٹی وی سے نہ سنیے پلیز, میری آواز آپ فون سے سنیے. میں میواڑی سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سوال کرنا ہے ایک. کیجیے سوال. ڈاکٹر السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے بھائی. جی سر, میں طارق بات کر رہا ہوں میواڑی سے. سر میری والدہ کا ایک پرابلم ہے چھوٹا سا, وہ موٹاپے کا شکار ہیں کافی عرصے سے. موٹاپے کی شکار ہیں؟ جی سر. اور سر وہ کافی علاج کرا چکے ہیں لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی. دوائیں بہت کرائی ہیں اور علاج بہت کیا ہے. ان کا وزن ان کا کتنا ہے؟ جی سر. ان کا وزن کتنا ہے آپ کی والدہ محترمہ کا؟ کافی عرصہ ہو گیا سر. جی کافی عرصہ ہو گیا سر. نہیں, کتنا ہے وزن آپ بتا سکیں گے؟ جی سر. کتنا ہے وزن آپ بتا سکیں گے؟ وزن اندازہ نہیں ہے سر, پتہ نہیں ہے اندازہ. اچھا, عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر تقریباً 35 سے 40 سال ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. دیکھیے اس کا علاج یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کم کھاؤ,
अच्छा। फिर लोगों ने वजह पूछी तो मौलाना ने फरमाया मछली इसलिए कम खाओ कि जिस्म पे से गोश्त को घुला देती है। और इसकी ठोस दलील देता हूँ मैं आपको। आपने किसी बंगाली को कभी मोटा देखा है? कोई बंगाली आपने मोटा नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत हमारे बंगाली भाई कसरत से मछली खाते हैं और स्लिम रहते हैं। और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से अब इसको मैच करें तो आपको मालूम चलेगा कितना हकीकत है। माज़अल्लाह इस पर शक ही नहीं कर सकते हम। आप अपनी वालदा को दिन के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे मछली रोज़ाना खिलाइए, उनका देखिएगा मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी वालदा को गर्म पानी पिलाइए, नीम गर्म पानी, उससे मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी वालदा को, गोश्त होता है सूखा हुआ गोश्त, जैसे पहले ज़माने में हवा में खुश्क करते थे, उस खुश्क गोश्त को पका के खिलाइए, उससे भी वज़न गिर जाएगा। अच्छा, ये तरीके हैं। खुशबू मत लगाइए, खुशबू से वज़न बढ़ जाएगा। गाय का दूध, भैंस का दूध मत पिलाइए, वज़न बढ़ जाएगा। अच्छा। गोश्त जो है सूखा खिलाइए, देखिए कितने ताकत आएगी और वज़न भी बहुत जल्दी गिर जाएगा। अच्छा, एक दिन के वक्फे से जो नहाएगा उसका वज़न बढ़ेगा, जो रोज़ाना नहाएगा उसका वज़न गिर जाएगा। बस अब तो दिन में 4 दफ़ा नहाना चाहिए, गर्म पानी से जिनको वज़न गिराना है। ये सही है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैडम, मैं सिद्धार्थ बसम बात कर रही हूँ काड़ा से। हाँ जी, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सबसे सवाल है कि ना मुझे ना जनवरी से लेकर ना अप्रैल तक ना दौरे पड़ते हैं। अच्छा। सिर्फ ये 4 महीने रहते हैं, उसके बाद मैं ठीक रहती हूँ। प्लीज इसके बारे में पूछ के कुछ बता दें। जनवरी से लेकर अप्रैल तक। अच्छा, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 4 महीनों में चाहे एक बार पड़ जाए, चाहे महीने में 4 बार हो जाए, सोई को हो जाता है। अच्छा, और बाकी आप साल ठीक रहती हैं? बाकी महीने? जी, बाकी साल में ठीक रहती हूँ। कोई वजह बताई कभी डॉक्टर्स ने? वजह तो कुछ भी नहीं। वो कहते हैं आपको ना छोटी उम्र में ना 10-12 साल की उम्र में आपको बुखार हुआ, तो इसकी वजह से ना आपकी दिमाग की जो नाड़ है ना, वो सिकुड़ जाती, शरेआन जो है ना वो सिकुड़ जाती है। इसी वजह से आपको। आप सर में किसी किस्म का रोगन आप लगाती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं लगाती। कुछ भी नहीं लगाती। ऑन एयर बताते हैं, ऑन एयर बताइए। सवाल है, मेरे पास लाइट नहीं है, हमारे पास लाइट नहीं है। अच्छा, तो आप जल्दी से इनको ऑन एयर ही बताइए। देखिए, आप रोगन बनफ्शा सर पे लगाइए रोजाना। रोगन बनफ्शा सर्दियों में गर्म है और गर्मियों में सर्द है इसकी तासीर। रोगन बनफ्शा लगाइए और 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए और गिरबान में दम कीजिए, इंशाल्लाह आपको आराम आना शुरू होगा। इसके अलावा सूरह जासिया लिखिए और अपने सराहने तकिए के नीचे रख के सोया कीजिए। सूरह जासिया 25वें पारे में है, आप इसको लिख कर और सर के नीचे, तकिए के नीचे रख के सोया कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये दौरे नहीं पड़ेंगे। सूरह जासिया 25वें पारे में, 25वें पारे में है। और मैडम वो क्या आपने तेल क्या बताया, वो भी पूछ लीजिए। रोगन बनफ्शा। रोगन बनफ्शा, ठीक है। रोगन बनफ्शा आपको आराम से मैसर आ जाएगा। आप इसको रोजाना सर में लगाइए और ये तमाम रोगनों में सरदार है। हाँ, बताइए जल्दी। एक ना छोटा सा एक सवाल और है। नहीं, अभी हमें एक और कॉलर भी लेने हैं, जल्दी से कर लो। छोटा मेरा एक भांजा है 2 साल का। अच्छा। उसकी ना कब्ज बहुत ज्यादा है, उसके बारे में। ठीक है, सुनिए, उसको बच्चे को आप मुनक्का खिलाइए, सेया वाला बड़ा वाला मुनक्का खिलाइए, अच्छी तरह से धो के। 4 दाने सुबह, 4 दाने शाम। 2 दिन के बाद ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर मसला हल ना हो तो सनाए मक्की की पत्तियां लीजिएगा, 4 पत्तियां सुबह, 4 पत्तियां शाम, तो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सनाए मक्की। सनाए मक्की। हाँ जी हाँ, सनाए मक्की। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर कॉलर राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं क्वेटर से बात कर रहा हूँ, मिस नुसरत शेरजमान गुज्जर। जी, शेरजमान गुज्जर साहब, पहले भी आप कॉल कर चुके हैं? जी, क्या नहीं, मैंने आज नहीं किया, मैं तो काफी दिनों बाद। नहीं, आप पहले कॉल करते रहे हैं, आज तो आपकी पहली कॉल। यू आर राइट। जी शेरजमान साहब, अल्लाह का शुक्र, फरमाइए आपका क्या सवाल है? सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस और आपकी पूरी पीटीवी टीम को, टेक्निकल स्टाफ को, तमाम मेंबर जो पीटीवी के हैं, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं और बहुत अच्छा इसका स्टैंडर्ड है। थैंक यू। तो इसके लिए आप लोग जो है ना माशाल्लाह, अभी ये चूंकि पीटीवी अवार्ड हो रहा है, उसके लिए भी होपफुली कि आप लोगों में से कोई ना कोई सिलेक्ट होगा, इंक्लूडिंग यू। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है से हकीम साहब से कि ये जो बॉडी पे स्कार जो ऐसे होता है ना, स्कार, उसको जो
एक निशान सा पैदा हो जाता है ब्लैक कलर का, सफेद सफेद निशान, तो वो उससे बहुत ज्यादा से वो होती है, खुजली सी होती है, तो मतलब वो स्कार के लिए क्या कोई ऐसे जो है ना वो सजेस्ट करेंगे कैसे वो ठीक होगा? ठीक है शेर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे क्योंकि अभी हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उनके सवाल का जवाब देंगे। आप देख वेलकम बैक टू सुबह नौ। आगा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। टाइम हमारे पास कुछ ही बचा है, कॉलर्स भी हैं हमारे साथ। अगर कोई खुदा न ख्वास्ता मुहल्लिक बीमारी है किसी को भी आपके घर में या आपके जानने वालों में, तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। वैसे जो मुहल्लिक बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जाए ये भी आप हमें बताइएगा। कॉलर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चीचा वतनी से राबेल। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कल मैंने आपको कॉल की, मैंने उस टाइम ना प्रोग्राम नहीं आ रहा था, बाद में जब आप आई हैं ना सामने तो आप इतनी प्यारी लग रही थी ना, सूट आपका बहुत अच्छा था। मैंने बड़ी कोशिश की मैं मिला के ना आपको बताऊं। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने खुद ही समझ लिया था कि तुमने कहा होगा। आज भी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप हैं प्यारी वैसे भी, सही बात करें इंसान। अल्लाह अल्लाह, शुक्रिया राबेल। अब चलो जल्दी से बताओ सवाल क्या है? हाँ, सवाल ये है कि मेरे ना 3 छोटे बहन भाई हैं मुझसे। अच्छा, ठीक है, उनकी तीनों ना बहन भाइयों की अचानक से नजर ना कम हो गई है। अच्छा, यानी कि सही आ रही थी बिल्कुल, यानी एक मैट्रिक के स्टूडेंट है, एक 7th क्लास के हैं, और मेरी सिस्टर है वो 5th क्लास के स्टूडेंट है। अच्छा, ठीक है। तो पहले उनकी ठीक भी नजर, एक की तो बहुत ही कमजोर है ना, यानी कि बहुत वीक हो गई है दूर की। अच्छा, ठीक है। तो मेरा सवाल तो ये है कि हमने दवाई तो ले ली है डॉक्टर से, मेरा इनसे है कि अचानक इस तरह नजर क्यों चली जाती है बच्चों की? अच्छा, ठीक है, ऑन एयर जवाब देते हैं, सही है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अब जल्दी हमारा साहब जवाब देंगे क्योंकि एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी नुसरत की हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन है हमारे साथ? अल्लाह घोड़ी वाले से मैं बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। ठीक ठाक, आज बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा, शुक्रिया। आप बताइए सवाल क्या? बात करना है। जी। पिंपल्स के दाग है मेरे चेहरे पर, उसके बारे में कुछ पूछना है। अच्छा, दाग हैं, ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑनलाइन बताइएगा, बत्ती नहीं है। अच्छा, इधर ही बताइए। पहले मैं इनके लिए बताता हूँ। आप कलौंजी को पीसिए और हस्बे ज़रूरत जितनी आपको लगाना मकसूद हो उस वक्त भिगोइए और चेहरे पे लगाना शुरू कर दीजिए, आपके ये दाने चले जाएंगे। कलौंजी आपने देखी है, काली काली जो होती है, कभी खाने में भी डलती है। अगर कलौंजी के अलावा खरबूजे के बीज पीसकर वो भी आप चेहरे पे लगाएंगे तो कील मुहासे भी खत्म होंगे, झाइयाँ भी खत्म होंगी, रंग भी गोरा होगा और फ्रेशनेस ताजगी बढ़ जाएगी। थैंक यू सर। मैं घोड़ी वाले से बात कर रहा हूँ, गोरे वाले से नहीं, घोड़ी वाले से। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन है हमारे साथ? मैं रुमाना बात कर रही हूँ चकवाल से। रुमाना, बड़ा अच्छा नाम है माशाल्लाह। बताइए क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल है कि मेरी उम्र 22 ईयर्स है, तो मेरी कमर में बहुत दर्द होता है ना। मैं 15 मिनट खड़ी रहती हूँ तो मुझे दर्द शुरू हो जाता है, मतलब किसी तरह भी आराम नहीं आता। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं, वक्त अब कम रह गया। आप मेरे को एक और बात सुन लें। हाँ। कि मेरी बहन है मलिहा, और वो ना हाफिज है कुरान पाक की, तो पहले बिल्कुल ठीक बोलती थी, तो अब उसकी जुबान ना हकलाती है। अच्छा। वो बोलते अड़ जाती है, कुरान पाक पढ़ते अड़ जाती है। अच्छा, प्लीज बता दें, ऑन एयर बता दें। ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए बेटे, सुनिए, सबसे पहले मैं लुकनत के बारे में ऑन एयर अब बताएंगे, तो पहले एक से बताते हैं ना। वो जो राबेल ने कहा था बहन भाइयों की नजर कम हो गई है, हाँ, पहले वो बताइए। ठीक है, बहन भाइयों की नज़र जो कम हो गई है, आंखों के ऊपर हाथ रखें और हाथ रखने के बाद सुबह नमाज फज्र के बाद 40 मरतबा ये दुआ पढ़ें जो मैं बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। और आँख के ऊपर हाथ मलते जाएं, ये पढ़ते जाएं, ये बीमारी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल। दूसरा हमारे पास ये है, हामिद साहब ने कॉल की थी और उनकी कॉल यहाँ तक नहीं पहुँच सकी थी, उन्होंने अपना सवाल लिखवा दिया था कि उनके 1 महीने से उल्टे हाथ में मस्कुलर पेन है, उसका बता दें। ठीक है, ये अपने इस हाथ पे हाथ रखें, दूसरा हाथ रखें और 40 मरतबा यही दुआ पढ़ें और जोर से इसको हिलाएं। एक दफा फिर बताइए दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। ये इसको मलते जाएं। मैं इंशाल्लाह ये बताता हूँ कि पहले दिन ही 40 मरतबा पढ़ने के दौरान ही इनका पेन जाएगा इंशाल्लाह। इसमें इतना मौजिज़ा है, इतना मौजिज़ा है। और अगर ये सूरह फातिहा को पूरा पढ़ लें, उसके बाद ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील वाली दुआ पढ़ें
तो ये तो बस मैं समझता हूँ 1 हफ्ता करने की जरूरत पड़ेगी इनको, खत्म हो जाएगा इनका खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, इन्होंने कहा कि बैक पेन है, कमर में दर्द रहता है, और बहन का मसला था कि हकलाती हैं। ठीक है, बैक पेन के लिए मैं बताता हूँ, हरमल 2-4 रुपए की मिल जाएगी पंसार से। हरमल को दूध में जोश दें और पिएं। ये हकीम लुकमान का नुस्खा है। हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हरमल को दूध में जोश दे के पका के पीने से कमर का दर्द जाता है। इसके अलावा दस्तरखान पे जो रोटी के रेज़े गिर जाएं वो उठा के खाने से भी कमर का दर्द जाता है। अच्छा, इससे कमर का दर्द भी जाता है और हेपेटाइटिस भी जाता है इससे। हाँ। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब ये राज मौला जानते थे कि इससे क्या क्या कनेक्शंस मिलते हैं, ये सब वो जानते थे, लेकिन ये मौला ने फरमाया कि कमर का दर्द भी इससे जाएगा और हेपेटाइटिस भी जाएगा इससे। अच्छा, हमें एक ब्रेक भी लेना है, लेकिन एक चीज रह गई, बता दूं लुकनत के बारे में, हकलाने के बारे में, और वो जिनका ब्लैक धब्बा था वो भी बताना है हमें, मगर एक ब्रेक लाजमी लेना है। ब्रेक लेते हैं, वापस। वेलकम बैक। हमारे पास एक कॉलर भी, कॉलर पहले ले लें या पहले आप वो लुकनत का बताएंगे? बताएंगे, बता दें। देखिए, लुकनत के बारे में सातर, स्वाद एन ते रे, सातर और नमक और जीरा, ये तीनों चीजें हम वजन लेके पीस लें और थोड़ा सा मुंह में रखा करें। इसको सिर्फ मुंह में रखें, बस खाएं नहीं, मुंह में रखें। इसको रोजाना 3 से 4 टाइम मुंह में रखें, इससे इनकी लुकनत चली जाएगी और बोलना शुरू कर देंगे ये। ठीक है, ठीक है। और वो जिनके ब्लैक स्पॉट था, ब्लैक स्पॉट के लिए मैं अर्ज करूं कि वही दुआ जो सुबह फजर के टाइम पढ़ने के लिए बताई, 40 मरतबा ब्लैक स्पॉट पे हाथ रखें और यूं पढ़ना शुरू कर दें। कुछ दिनों में ब्लैक स्पॉट गायब हो जाएगा वहां से इंशाल्लाह। सही। हामिद साहब, जिनको आपने उल्टे हाथ के लिए बताया था, उनकी कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटी? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? नहीं, ये वो नहीं है, हामिद साहब नहीं है। अल्लाह का एहसान है। अच्छा, मैं मुंदरी से हामिद बात कर रहा हूँ बेटी। जी, ये दूसरे हामिद है, सॉरी। हाँ जी, हामिद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चों का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा आपके सब स्टाफ को और अमले को और आपकी पूरी टीम को। ये शबरात की मुबारकबाद कबूल हो बेटी। जी, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक है। अच्छा, खैर मुबारक। और दूसरा ये आगा साहब से अर्ज करना है कि मेरी बेटी बड़ी साइमा जो है उसके बाल बहुत गिर रहे हैं बेटी। अच्छा, हाँ, सही, उससे जरा पूछिएगा। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं क्योंकि वक्त कम रह गया है बहुत। ठीक है, थैंक यू सो मच हामिद साहब, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है हामिद साहब, मेरी आपके लिए लामहदूद दुआएं हैं और आपकी बेटी के लिए भी। देखिए, अनार अभी सीजन शुरू होने वाला है, अनार को उस बच्ची को खूब ज्यादा खिलाएं। कुछ रतूबतें जिस्म में से कम हो जाती हैं जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अनार को कसरत से उस बच्ची को खिलाएं। इसके अलावा सर में रोगन बनफ्शा की मालिश कराएं रोजाना। रोगन बनफ्शा मिल जाता है ना? आराम से मिलता है। रोगन बनफ्शा पे 7 मरतबा सूरह फातिहा या 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़वा के और लगाएं। अच्छा, उस बच्ची से कहें कि वो 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और अपने गिरबान में दम करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये बाल गिरना बंद हो जाएंगे उसके। सही, ठीक है। अगर साहब ये बताइए, सबसे ज़्यादा आजकल जो लोगों को प्रॉब्लम है और इतना अजीब लगता है खैर ये देख के कि औरतों के साथ जुल्म हो रहे हैं, बेटियां हो रही हैं, मुतवातर बेटे की ख्वाहिश है और इस पर माँ को कभी छोड़ दिया जाता है, कभी मारते हैं या जो कुछ भी है। तो ये बेटे की जो एक हमारी सोसाइटी में है कि बेटा हो जाए, 3-4 बेटियां अब हैं, उसके लिए कोई हल है? देखिए, मेरे मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्हें ख्वाहिश है कि बेटा पैदा हो, वो लोग कासनी के पत्ते, चौलाई जैसी शक्ल है इसकी, चौलाई जैसे होते हैं चौड़े, लेकिन कासनी के पत्ते बहुत कड़वे होते हैं और मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन मिल जाया करते हैं। कासनी के पत्ते जो हैं वो मर्द खाए। अच्छा। चाहे वो सब्जी बना के भून के खाए या वैसी सलाद टाइप के खाए, मर्द खाए। अच्छा। उससे मर्द के मादा तौलीद में हयातियाती कीड़े इतनी शक्ल में बढ़ जाएंगे कि उन्हें बेटा पैदा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा। और वो नियत कर लें कि बेटे का नाम मोहम्मद रखूंगी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की नियत करें, उसकी बरकत से और ये पिलाने से, ये खाने से, मर्द खाए सिर्फ, औरत ना खाए, आप देखेंगी कि बेटों की लाइन लग जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, सही है। एक हमारे साथ कॉलर है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? जी नुसरत बाजी, मैं सानिया बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हो? ठीक ठाक? जी ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, आपके बच्चे ठीक हैं? आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक है। बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल मिलती है, कसम से। कल से लगे हुए हैं आप? कल से लगे, मैं आज कॉल मिल गई। जल्दी से सवाल कर लो, ऐसा ना हो कि टाइम खत्म हो जाए, जवाब रह जाए आपका।
नहीं, मैंने मौलवी साहब से कोई बात नहीं करनी। मैंने आपसे ये पूछना था कि शाहिद खान अफरीदी का नंबर मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, मेरे पर्सनल मोबाइल पे है, दे दूँ निकाल के अभी? जी, आप अपना नंबर दे दें। माशाल्लाह, आपको ये हकीकत लग रही है? ऐसे नहीं होते नंबर्स के ऐसे बस शाहिद खान अफरीदी का नंबर मिल जाएगा। और आप अब मेरी टीम से बात कीजिए और ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आप लोगों के पर्सनल नंबर्स ना लिया करें, वो लोग बड़े मसरूफ होते हैं। आप लोग मोहब्बत करते हैं। हाँ। नहीं, मैं माइंड नहीं कर रही, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ ऑन एयर बताऊंगी आपको। आप मेरी टीम से बात करें। थैंक यू सो मच। देखिए, जितने लोग हमारे पास यहाँ आते हैं, हम लोग ब्रेक में भी बात करते हैं, लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं। शाहिद खान अफरीदी साहब के पास ये टाइम नहीं हो पाता कि वो हमसे बात करें, हमारी टीम से बात करें, यहाँ आने की प्लानिंग करें, वो बहुत मसरूफ़ हैं। आप लोग पर्सनल नंबर्स मांगते हैं, हम ऐसे नहीं दे सकते, ये एथिकली गलत है। एक तो हमारे पास है नहीं, और अगर मेरी टीम में से किसी के पास होगा भी तो ये एथिकली गलत है। आपका नंबर मैं दे सकती हूँ किसी को, मेरा टीम मेंबर बोले कि मुझे इस कॉलर का नंबर दे दें तो मैं दे दूँ आपका नंबर, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इसका ख्याल किया कीजिए। अच्छा, बच्चों के बारे में एक और चीज़ जो माँ बाप को बड़ी रहती है कि बच्चे बड़े खूबसूरत होने चाहिए, दुआएं पढ़ते हैं और क्या क्या करते हैं। जो माँ बाप ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनके बच्चे खूबसूरत पैदा हों, मर्द को चाहिए कि रोज़ाना निहार मुँह सेब खाए। अच्छा, तो बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। अगर औरत जो हामला हो चुकी है, वो अमरूद आता है जिसका एक तरफ से गोल होता है, एक तरफ से उसकी चोंच निकली हुई होती है, लड़काना का अमरूद कहलाता है। वो अमरूद अंदर से गुलाबी होता है, तो अंदर से जो गुलाबी अमरूद होता है वो अमरूद खाया करें। उससे बच्चे बेइंतहा हसीन बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा। लंबी लंबी पलकें होंगी, खूबसूरत लाल सुर्ख चेहरा होगा, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। को आपने यहाँ पे कह दिया, अब देखते हैं। खैर जी, थैंक यू सो मच आया साहब। वक्त यहाँ पर ख़त्म हो चुका है हमारे पास। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी फिर सिटिंग रखेंगे और लोगों से उस वक्त देखेंगे कितना उन्होंने आजमाया इन फॉर्मूलेज को और आगे उनका क्या इरादा है, क्या सवाल